Jai Hind everyone. We were discussing the comet portion from the chapter perimeter and area. Chapter perimeter and area and comet we were discussing. In that, in the last class, we have discussed till question number 4. Now we are discussing question number 5. Question number 5 says that remember beta इस comet में जितने भी question है, all are from RS. All the questions are related to RS Agrawal. ठीक है? Maybe one or two which is belonging from our NCERT as well, but most probably all the questions are related to RS Agrawal. Question number 5 is ABCD is a parallelogram. Let's draw a parallelogram. Then it is telling, I am giving the name also ABCD. It is a parallelogram. Then it is telling AE is perpendicular to DC. Means this is A से एक perpendicular draw हुआ यहाँ पर. This is E. So AE is perpendicular to DC, which we have drawn it. If you must be remembering perpendicular कैसे draw किया जाता है और कैसे कौन सी side पर draw होता है. This I have already taught you when we were discussing in the class. So now this is done. Now it is telling if DC is 20 centimeter. DC means this is the base. DC is 20 centimeter. I am writing also here. DC is 20 centimeter. And AD is 5 centimeter. AD means this is the side. This is 5 centimeter. So I am writing AD also. AD is equals to 5 centimeter. Now find the area of parallelogram, and the area of parallelogram is 40. Now area of parallelogram is also given. Area of parallelogram is 40 centimeter square. You have to find out the measurement of DE. DE means this. Now tell me how can we solve this? Here we will, ये क्वेश्चन आपको टफेस्ट क्वेश्चन लगेगा अगर आप इसमें दिमाग नहीं लगाओगे बेटा. तो पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप इसको नोट कीजिएगा. ठीक है? फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस. इन दिस पैरेललोग्राम वी नो द एरिया फ्रॉम बिफोर ओनली. हमको पहले से इसमें एरिया पता हुआ है. ठीक है? सो अगर आप जानो तो फॉर्मूला, अगर आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट. ठीक है? सो यहाँ पर अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये डीसी बेस पता है. दिस इज द बेस. दिस इज द बेस विच वी आर ऑलरेडी नोइंग. एंड इस बेस की हाइट कौन सी होगी? ये वाली AE. ये आपको पता नहीं है. तो अगर हम इस क्लू को अप्लाई करें तो हमें बेस पता है, हम इससे हाइट निकाल सकते हैं बिकॉज वी नो ऑल्सो द एरिया. ठीक है? सो आई एम पुटिंग बेस एज DC. DC का मतलब है 20. रख दिया. हाइट मीन्स AE. I am writing AE only, and this is now 40. Okay. Now, may I know from you all what is the value of AE here? Tell me first, what is the value of AE? Very good. Correct. AE will be 40 by 20, which will give you 2 centimeter. Okay. Now we have got AE as 2 centimeter. ठीक है? हमको मिल गया ये वाला डायमेंशन. अब आप बेटा गौर से देखो, इस क्वेश्चन में हमें निकालना है ये छोटा सा टुकड़ा, दैट इज DE. अब हम एक काम करते हैं, उसमें पैरेललोग्राम में हम अच्छे तरीके से फिगर को नहीं देख पा रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, हम एक अलग से उस सेपरेट चीज को ले ले रहे हैं. नाउ लुक एट हियर. आई एम टेकिंग दिस DE. दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज A. सो दिस इज A, दिस इज E, दिस इज D, एंड ये दिया हुआ है कि दिस इज परपेंडिकुलर. So this is already given. Now this is given 5 centimeter. Okay, and this DE we don't know, and this I have got it as 2 centimeter. This is according to the question. Now may I know from you all, please tell me how can we find out DE? सोच कर बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाइए फोर्स करके और मुझे बताइए कि हम इससे DE कैसे निकाल सकते हैं. Think of it. इसमें एक क्लू दिया हुआ है. That is why I have drawn this triangle separately so that you can understand it more clearly. How can you think this question?
Very nice. Saksham has written the answer to me that ma'am, by Pythagoras we can use the theorem of Pythagoras because Pythagoras theorem is only applied in right angle triangle. और आप गौर से देखो बेटा, this is a right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं, जिसमें से अगर आपको कोई भी 2 पता हो तो हम तीसरी वाली कभी भी निकाल सकते हैं. Okay, so by using this method you can take out the third side of this triangle because question में हमसे DE ही पूछा जा रहा है. So if you want to find out DE, you have to use the Pythagoras theorem here. So what we will do it for Pythagoras theorem, hypotenuse का square मतलब by Pythagoras theorem let us apply this. 5 का square will be this 5 मतलब hypotenuse. Okay, this is the longest side. इसका square will be equal to 2 square plus this is unknown वाला means DE का square. So our answer will be 5 का square होता है बेटा 25, 2 का square होता है 4 and this is plus DE का square. So our answer will be 25 minus ये वाला 4 इधर आ जाएगा. So DE का square will be equal to 21. I am writing here, है ना? So DE square will be 21. This is our answer. DE का square. But हमें क्वेश्चन में वैल्यू चाहिए थी DE के स्क्वायर की नहीं, केवल DE की. So DE will be under root 21 centimeter. And remember 21 is not a perfect square number. 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है बेटा. 21 is not a square of any number. अभिषेक 21 किसी का स्क्वायर नहीं होता है बेटा. So answer will be 21 only. Under root 21 centimeter. We will not solve it further. Completed. Please note it down so that we can do the next question now. Now question number next is question number 6. And what question number 6 is telling, it is drawn a shade, it's drawn a circle now. अगर आप गौर से देखोगे तो बेटा इस फिगर में एक सर्कल बना हुआ है and circle is divided into 4 equal parts. ठीक है, अगर आप गौर से देखोगे तो जो क्वेश्चन में सर्कल बना हुआ है वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है इक्वली और उसका ये वाला पार्ट शेडेड है. ठीक है, सो ये हमने शेड कर लिया. नाउ इट इज टेलिंग यहां से ये 7 है और यहां से भी 7 है. नाउ मे आई नो फ्रॉम यू दैट what is the radius of this circle? Can you please tell me in the chat box? What is the radius of this circle? What do you say? Very nice. It's 7 centimeter. Absolutely correct. So radius of this circle is 7 centimeter because you are knowing कि अगर हमें एरिया निकालना है चाहे वो शेडेड एरिया का हो या पूरे फुल सर्कल का हो, रेडियस इज कंपल्सरी. तो सबसे पहले तो हमने इससे रेडियस ले लिया. ठीक है, अब आप इसको गौर से देखो. कैन यू टेल मी जिस पोर्शन का हमें एरिया निकालना है दैट पोर्शन इज व्हाट इज द पार्ट ऑफ दिस सर्कल? द फुल सर्कल का कौन सा वाला पार्ट है ये? यस करेक्ट प्रज्ञान. अगर मैं बोलूं कि फुल सर्कल का कौन सा वाला पार्ट है जितना एरिया आपको निकालना है? 1/4 है. वेरी ट्रू. इट इज 1/4 ऑफ द फुल सर्कल बिकॉज देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 पार्ट्स आर देयर एंड वी वांट ओनली द एरिया ऑफ 1/4 पार्ट. तो इट मीन्स अगर आपको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है इट मीन्स यू विल बी सिंपली टेकिंग आउट 1/4 of area of full circle. Full circle means that is pi r square. Okay, now let's put the value here. 1/4 means 1/4. Pi means होता है 22/7. I have kept 22/7 and r square. R की value है 7, तो 7 into 7. Okay, I have written the value only there. Now this 7 cancelled. This will cancel as 2. This will cancel as 11.
ओके, नाउ 11 सेवेंजा होता है बेटा 77, ऊपर और कुछ भी नहीं बचा है और नीचे बचा है केवल 2। लुक एट हियर, यहाँ 1 था, यहाँ 11 है, तो ओनली 11 बचा, यहाँ से 7, तो 11 सेवेंजा 77 एंड नीचे इज ओनली 2, सो 77 by 2, और आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यू विल हैव 38.5 centimeter square. Why centimeter square? Because question was given in centimeter unit and area is always written in the square centimeter, so that is why I have written here square centimeter, because unit was centimeter. So this was all about question number 6. Now let us focus on question number 7. The area of circle is 100 times the area of another circle. Find the ratio of their circumferences. Okay. May I rub this question? So I'm rubbing this. Okay. Now बेटा गौर से अगर आप देखो, so क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे ये बोल रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको एक बार बस फोकस करना इस लाइन पे, व्हाट इट इज टेलिंग एज अ हिंट. द एरिया ऑफ सर्कल, मतलब एक सर्कल के बारे में बात कर रहा है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, यहाँ पे 2 सर्कल हैं, तो हमने माना यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 1. अब एक काम करो, ये मान लो सर्कल 1 एंड सर्कल 2, ठीक है. सर्कल 1 मतलब C1, सर्कल 2 मतलब सर्कल C2, ठीक है. Now it is telling that area of circle 1 is 100 times of another circle. Means आपके पास C1 is equals to 100 multiply by C2. This is it is telling, है ना. मतलब एक सर्कल का एरिया दूसरे सर्कल के एरिया के 100 टाइम्स है. तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर. बट यहाँ पर 2 सर्कल है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हम कि दोनों में से कौन से सर्कल के आर की बात हम कर रहे हैं. तो हम लोग क्या कर देते हैं, उसको R1 और R2 से डिफाइन कर देते हैं. फॉर सर्कल 1 आई एम राइटिंग R1 एंड फॉर सर्कल 2 आई एम राइटिंग R2. ठीक है, इसमें फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ओनली आई हैव written in the form of R1 and R2. बाकी rest of the things are same. Now understand this. Just take this number in the form of ratio, because question में आपसे ratio के form में पूछा जा रहा है. So I want ratio here. So I am taking this number down here. It will come as pi R2 square और 100 यहाँ का as it is 100 upon 1. Is it fine till here? Tell me now. This is fine till here. Write it down. Yes or no in the chat box. I have just transferred. ये multiply में था, हम इसको यहाँ पर divide में लेकर के आ गए. यहाँ पर 100 था as it is 100 and यहाँ पर 1 इसलिए लिखा मैंने because किसी भी नंबर के नीचे हम 1 लगा सकते हैं ताकि हमें रेशियो के फॉर्म में मिल जाए. That is why I have written this. Okay, correct. Now look at here. Pi से pi हो गया cancel. Okay. And I am left with R1 का square and R2 का square is equals to 100 by 1. Now may I know from you that अगर मैं इसको square दोनों में लगा, इसको मैं ऐसे common के form में square लिख दूं, so that it is fine or not? Tell me, is it fine or not? दोनों में square लगा था, मैंने common square लगा दिया. Okay, correct. As per your chat box, it is correct now. It's fine. ठीक है. Now let's move on to the last step. देखो, R1 and R2 का square. Now may I know from you that ये किसका square है? 100 और 1 को अगर हम square के form में लिखना चाहें तो ये किसका square है? Okay, 110 का square है और 1 किसका square है? 1 किसका square है? Think of it. 1 किसका square है? 1 का खुद 1. Yes, correct. 1 खुद 1 का ही स्क्वायर है, बिकॉज 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही आता है. करेक्ट. सो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, यू कैन सिंपली राइट इट डाउन एज R1 अपॉन R2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 by 1 का स्क्वायर. दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. Now tell me this step is clear or not, because this question is little logical. Okay. Now tell me R1 upon R2 का square will be equal to 10 by 1 का square. Now may I know from you all
what is the value of R1 and R2? R1 upon R2. What will be the value of R1 upon R2? दोनों मैंने सामने लिख दिए, अब आप मुझे बताइए दोनों को देख के, दोनों के बीच में इक्वल का साइन लगा है. Now you tell me what is the value of R1 upon R2? 10/1, correct? Because स्क्वायर एंड स्क्वायर से हमें मतलब नहीं है. इफ वी डू कंपैरिजन, अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग 2 कैंसिल हो जाएगा. कैंसिल मतलब कंपैरिजन करेंगे हम, है ना. कैंसिल नहीं होता है बेटा, कंपैरिजन होता है. तो जब आप कंपैरिजन करोगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ बीच में इक्वल लगा है, तो R1 अपॉन R2 मीन्स 10/1. तो हमारे क्वेश्चन से हमको कंक्लूजन मिल गया, R1 अपॉन R2 जो है it is equal to 10/1. This we have got it ultimately, and this was only the main thing which I was wanting it. ठीक है, अब ये सारा कुछ हम निकाल चुके. Now we will be doing the last step of this question. The question is telling find the ratio of their circumference. Okay, circumference, it means you have to find out the ratio of their circumference. So look at here now. सर्कमफेरेंस का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 2πr. नाउ दूसरे सर्कल का क्या होगा, वो भी 2πr होगा. दोनों के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये R1 है, ये R2 है. ओके, अब आपको इसका रेशियो निकालना है. रेशियो हम ऐसे ही निकालते हैं, पहले वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस अपॉन दूसरे वाले सर्कल का सर्कमफेरेंस. 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, बचा क्या, R1 upon R2. Now what is the value of R1 upon R2? हमने अभी निकाली थी. Tell me what is the value of R1 upon R2? Just we have done it. Tell me. I have written also separately. What is the value of R1 upon R2? Very correct. 10/1. 10/1. So this is our answer. 10/1 is the answer of this particular question. ठीक है, एंड हमको रेशियो के फॉर्म में लिखना है, तो वी विल सिंपली राइट इट डाउन 10/1. सी द मेन थिंग वाज व्हाट वी हैव डन इट, हमने क्वेश्चन के हिंट को लिया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था, हमने उसके हिंट का हेल्प लिया, और हिंट की मदद से हम क्वेश्चन से R1 और R2 की वैल्यू निकाली. जब R1 अपॉन R2 की वैल्यू निकाली, तब हमने क्वेश्चन की आधी से ज्यादा चीजें सॉल्व कर चुकी थी. बिकॉज क्वेश्चन में निकालना था रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस, एंड सर्कमफेरेंस होता है 2πr. यहाँ दो सर्कल्स की बात हो रही है, दो डिफरेंट सर्कल की, तो हमने एक को माना था R1 रेडियस वाला और एक को माना था R2 रेडियस वाला. तो 2πr1 अपॉन 2πr2, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया था रेशियो निकालते समय, केवल बचा था R1 अपॉन R2. और ये मुझे पहले से पता था कि रेशियो ऑफ देयर सर्कमफेरेंस कम्स R1 अपॉन R2. ठीक है, सो R1 अपॉन R2 की वैल्यू हमने पहले से निकाल चुकी थी, दैट वाज 10/1. सो आवर रेशियो इज नाउ 10/1. दिस इज डन. ओके, दिस क्वेश्चन इज आल्सो कंप्लीटेड. Now last question of classwork portion, which is there are 3 people, Amit, Sunil and Ravi. Each used a piece of wire measuring 32 centimeter length. Means सभी के पास, सभी लोग एक वायर का यूज कर रहे हैं, जो वायर आपकी शुरू में ही दी हुई है, दैट इज 32 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, और यहाँ पर 3 लोग हैं, अमित है, सुनील है, and the last one is Ravi. Okay, now it is telling Amit, Sunil and Ravi each used a piece of wire measuring 32 centimeter in length to make a shape. Amit made a square with a side of length 8 centimeter. Sunil made a rectangle with a length of 9 centimeter. Ravi made a rectangle with a breadth of 10 centimeter. Who made a shape with the greatest area? Now I just want to ask from you all that you know the length of wire. It means what do you know about it? ये क्वेश्चन हमने डिस्कशन किया था, इस टाइप का क्वेश्चन. अगर आप किसी वायर से कोई शेप बनाते हैं, तो इट मीन्स आपको उस शेप की क्या पता है.
पेरीमीटर पता है या एरिया पता है? व्हाट डू यू नो अबाउट इट? अगर आप किसी वायर से या किसी रोप से अगर आप कोई शेप बनाते हैं तो आपको शेप का क्या पता है? पेरीमीटर पता है या एरिया पता है? Very good. I can see many of you are writing, at least you know the concept. Yes, you know the perimeter of that figure. Okay? Because जब आप इस वायर को मोल्ड करोगे और मोल्ड करके आप इससे कोई फिगर बनाओगे बेटा, तो ये जो वायर है वो यहाँ आ गई, है ना? ये वायर बन गई. So वायर ने शेप बना दिया. It means you are talking about perimeter. It means इस क्वेश्चन में आपको ये हिंट दी है कि ये तीनों जो भी फिगर बना रहे हैं उन तीनों फिगर्स में आपको पेरीमीटर पहले से पता है. ठीक है? पेरीमीटर विल बी 32 बिकॉज वायर चेंज नहीं होगी. वायर विल बी 32 ओनली इन ऑल द केस. ठीक है? सो यहाँ पर पेरीमीटर आपको पता है, तो आई एम राइटिंग हियर पेरीमीटर विल बी 32. अब अकॉर्डिंग टू द पेरीमीटर टेक आउट द डायमेंशन ऑफ इट. देखो सबसे पहले अमित ने स्क्वायर बनाया जिसका लेंथ है 8 सेंटीमीटर. मतलब अमित डायरेक्ट एरिया निकाल सकता है. एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड. हियर यू विल टेक आउट 8 सेंटीमीटर साइड दी हुई है, मींस 64 स्क्वायर सेंटीमीटर विल बी द एरिया ऑफ द शेप व्हिच अमित हैज मेड. सबसे पहले हमने निकाल लिया. फिनिश्ड. अब आती है बारी सुनील की. बेटा सुनील ने रेक्टेंगल बनाया है और रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें चाहिए लेंथ भी और ब्रेथ भी. लेकिन क्वेश्चन में हमको केवल दी हुई है लेंथ, तो हम पहले निकालेंगे ब्रेथ. ब्रेथ किसकी मदद से निकालेंगे? पेरीमीटर की मदद से. सो व्हाट वी विल बी डूइंग, ब्रेथ विल बी इक्वल, यहाँ पर आप ले सकते हो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बिकॉज दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर विच इज इक्वल टू 32. ठीक है? इसमें आपको क्या हुआ था? लेंथ आपको पहले से पता थी. लेंथ वॉज गिवन 9, b you were not knowing, and this is equal to 32. Now इसकी help से let us take out the dimension of breadth. So it will give you 2 9s are 18 into 2 into b, which will give you 2b is equals to 32. So 2b will be equal to 32 minus 18, which will give you here 14, and value of b will be 7. ये आ गया आपके पास breadth. और जैसे ही आपको बेटा ब्रेथ मिल जाएगा, यू कैन टेक आउट एरिया ऑफ द शेप विच सुनील हैज मेड. सुनील हैज लेंथ इनटू ब्रेथ. यहाँ पर हो जाएगा लेंथ थी आपके पास पहले से 9, ब्रेथ आ गई आपके पास 7, तो 9 7s are 63. So 63 square centimeter which you have got for Sunil. Now the same process do it for Ravi as well. बिकॉज रवि वाले क्वेश्चन में भी रवि ने रेक्टेंगल ही बनाया है, बट उसने ब्रेथ उसमें पता है आपको. ब्रेथ दी हुई है 10. सो वी विल बी डूइंग द सेम प्रोसेस. 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 32. 2 इंटू लेंथ हमको पता नहीं है, ब्रेथ दी हुई है 10. आई हैव पुट दिस वैल्यू. इट विल गिव यू 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 32. 12 is equals to 32 minus 12 मतलब 12. 32 minus 20 means 12. L की वैल्यू आ जाएगी 12 by 2 means 6. Means हमको लेंथ मिल गया 6. Now you want the area of it. Area will be length into breadth. So यहाँ पर हम रखेंगे लेंथ की जगह पर 6, ब्रेथ की जगह पे रखेंगे 10. आ जाएगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर. अब आप गौर से देखो बेटा, अमित 64 square centimeter, Sunil 63 square centimeter, and Ravi 60 centimeter square. Who is having the larger area? Tell me. Who is having the larger area in shape? Yes, very true. The shape made by Amit has the largest area. Okay? The shape made by Amit has the largest area in all. Okay? So this was all about the comet which we have done it today. Only homework part is left. Homework part you will be doing, and in the next class we will be doing the more challenging question.